We'll be continuing with our macroeconomic lectures. Today's topic will be credit creation by commercial banks. Before starting with our topic, I just want to clarify what do you understand by money. When we talk about money, there are two functions, that is static and dynamic functions. When we talk about static functions, it includes your medium of exchange, money as a medium of exchange, as a measure of value, as a store of value, or as a standard of deferred payments. When we talk about dynamic functions includes those when we talk about recession, when we talk about money supply, all about the stability of the GDP of the economy, that how because of money supply we can control all over the economy and all the supply of the money. Next, who are the suppliers of money when we talk about the Indian economy? First is our central bank, that is our RBI. Next is our central government. Third is our commercial banks. Commercial banks, we talk about who basically offers deposits, who through which we can borrow loans, and basically for our repayments of loans or for our debts when we consult all about the commercial banks. Starting with our today's topic, credit creation by commercial banks. How they create credit, what they basically talk about, how the money is being circulated. Do they basically have extra money so that they can offer to the public when they come to their the banks for the loans and all? And basically it's like what the we एज अ कस्टमर, हम जो हमारे डिपॉजिट्स, हमारे जो अमाउंट ऑफ मनी हम बैंक में अपने पास रखते हैं, वही मनी को बैंक्स जो है वो दूसरे कस्टमर्स को लोन्स के फॉर्म में ऑफर करती है. आरबीआई कुछ सर्टेन अमाउंट कमर्शियल बैंक्स को एज अ डिपॉजिट्स के फॉर्म में अपने पास स्टोर के लिए रखती है. बाकी जो हम क्रेडिट क्रिएशंस की बात कर रहे हैं, जो हम लोन्स ऑफर कर रहे हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हम कस्टमर्स को लोन ऑफर कर रही है, वो वही मनी है जो उसके बाकी अकाउंट होल्डर्स हैं जो एज अ डिपॉजिट्स आपके पास वहाँ बैंक के पास स्टोर करते हैं. एंड आई ट्रस्ट कि हाँ, ये सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अगर हम अपने पास घर में रखेंगे तो उसका इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा, बट अगर हम वही अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हमें उसका इंटरेस्ट रिसीव होता है. सो फॉर दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो हम डिपॉजिट्स अपना बैंक के पास एज अ सेफर साइड के लिए रखते हैं. सो कस्टमर्स बेसिकली ना एक्टिव मोड अपना कुछ सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट्स के फॉर्म में बैंक के पास डिपॉजिटरी में रखते हैं. नेक्स्ट, वही अमाउंट का कुछ सर्टेन कैश रिजर्व रेशो CRR जो हर कमर्शियल बैंक्स को अपने पास मेंटेन करना पड़ता है, वो सर्टेन अमाउंट को अपने पास रखकर बाकी का रिमेनिंग अमाउंट को वो लोन के फॉर्म में लेंड कर देते हैं. अब जो डिपॉजिट्स अकाउंट होल्डर्स की होंगी वो प्राइमरी बेसिस पे डिपॉजिट्स होंगी. Starting with credit creation by commercial banks, we start with an example. I'll explain you with an example so that you can understand it better way. We'll be taking a certain amount of cash deposits, for example 10,000 rupees as a cash deposits by the customers in a certain commercial banks. Now, every commercial bank has to maintain a CRR ratio. Basically, it's 4% CRR ratio, but for our example, we are taking it at 10%, so that the minor calculations will be there and you will be able to understand more nicely. So, starting with our example, we have assumed that cash deposits are rupees 10,000. Now, when there are 10,000 rupees as a cash deposits and we have to maintain CRR ratio of 10%, so basically our reserves will be 10% of 10,000, that will be 1,000 amount. The 1,000 are our required reserve, which is our requirement as a CRR, which commercial banks have to reserve. Remaining will be our 9,000 rupees, that will be excess reserve. Basically actual cash deposits minus our minimum required that cash reserve ratio. Finally the calculated amount will be our excess reserve, that is 9,000 rupees. Now 10,000 are our primary deposits. वो हमारे प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं जो हमारे एक्चुअली कैश डिपॉजिट्स जो हुए थे.
अब जो 1000 है वो CRR के फॉर्म में, रिजर्व के फॉर्म में कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रिजर्व करना है। रिमेनिंग का जो 9000 है वो जो कमर्शियल बैंक्स अपनी जनरल पब्लिक को लोन के फॉर्म में बोरो, अगर किसी को बोरो करना है लोन करें तो वो लेंड कर सकती है। अब एक्चुअली ये कहा जाता है कि एक टाइम पर सारे जितने अकाउंट होल्डर्स हैं जिन्होंने अपना कुछ सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है वो एक ही टाइम पर सब लोग विड्रॉ नहीं करेंगे। तो कमर्शियल बैंक्स का ये अजम्पशन रहता है कि जो हमारे पास जो अकाउंट होल्डर्स ने मनी डिपॉजिट किया हुआ है वो हमारे पास रहेगा। सर्टेन टाइम पे कुछ लोग उस चीज़ को विड्रॉ करेंगे बट नॉट ऑल द अकाउंट होल्डर्स एट अ टाइम, एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। सो दे अज्यूम दैट कि वो जो अमाउंट हमारे पास 9000 रिमेनिंग है एक्सेस रिजर्व वो हम लेंड कर सकते हैं किसी और को जिसके को लोन की रिक्वायरमेंट है। अब अगर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो कभी भी इन कैश नहीं होगी, वो हम उसके अकाउंट होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो चीज़ हमारी इन कैश नहीं होगी। अब इन कैश नहीं होगी तो ऑन अ वे हमारे पास वो 9000 रुपीज़ रहेगा, हम उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बट वो जो 9000 मनी है वो हमारे पास ही मेंटेन, मतलब जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास ही मेंटेन। सो टोटली जब हम अपनी टोटल डिपॉजिट्स की बात करते हैं हमारी प्राइमरी डिपॉजिट दैट इज 10,000 रुपीज़ प्लस जो हमारा रिमेनिंग 9000 था, सॉरी 9000 रुपीज़ हमारी एड ऑन हो जाएगी, 19000 हमारे पास टोटल डिपॉजिट आ जाता है। वो इसलिए कि 10,000 तो हमारा प्राइमरी डिपॉजिट्स था जो हमने एक्चुअली डिपॉजिट्स किए थे। अभी 9000 जो हमारा एक्सेस रिजर्व्स है जो हम लोगों ने CRR रिजर्व एक्स्ट्रा अलग से मेंटेन करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग एक्सेस रिजर्व बचता है वो हमारा एक्सेस रिजर्व वो हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट्स होगी। ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेशन में हमने लोन प्रोवाइड कर दिए बट वो हमने इन कैश नहीं किया क्योंकि कभी भी लोन्स इन कैश नहीं होती, वो उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसलिए जो रिमेनिंग अमाउंट था वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास डिपॉजिट्स होगी 19,000 की, 19 दैट इज 10,000 प्लस 9,000 वी हैव 19,000 ऑफ डिपॉजिट्स। अब वो 19,000 हमारे पास टोटल डिपॉजिट्स हो गई। अगेन कमर्शियल बैंक्स अगर CRR के फॉर्म में रेशो CRR रेशो मेंटेन करेगा तो उसका 10% रिजर्व रखेगा। 19,000 का 10% हुआ 1,900। Now 1,900 will be required reserve which a commercial bank has to maintain. रिमेनिंग अमाउंट जो एक्सेस रिजर्व होता है जो हमारी एक्चुअल कैश डिपॉजिट्स कितनी थी 10,000, 10,000 से माइनस हमने किया 1,900 दैट द अमाउंट विल बी अराउंड 8,100। नाउ 8,100 रिमेनिंग अमाउंट वो हमारी एक्सेस रिजर्व हुई, वो एक्सेस रिजर्व जो हम लेंड कर सकते हैं किसी दूसरे कस्टमर को लोन के फॉर्म में। अब वही चीज़ वापस रिपीट होगी जब 8,100 हम लोन लेंड कर सकते हैं तो वो हम इन कैश नहीं कर सकते, वो उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब जब वो उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी तो हमारे पास एक्चुअली जब हम डिपॉजिट्स की बात करें तो हमारे पास 10,000 जो प्राइमरी डिपॉजिट्स था, सेकेंडरी डिपॉजिट्स में 9,000 जो हमारे था और ये हमारा 8,100 भी एड ऑन हो गया उसमें। हमारी टोटल डिपॉजिट्स क्या होगी 10,000 प्लस 9,000 प्लस 8,100। ये इसलिए क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो इन कैश नहीं हो रहा है। अब इन कैश नहीं हो रहा है तो वो ऑन डॉक्यूमेंटेशन हम शो करेंगे कि हमने लोन लेंड किया बट क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट में कोई भी लोन अमाउंट अपना विड्रॉ नहीं करता है क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट में ब्रेक्स में वो ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी इन कैश नहीं करेगा। तो इसलिए हमारे पास एक्चुअली हमारी डिपॉजिट्स इतनी है। फिर उसमें अगेन हम 10% करेंगे, 10% करने के बाद आपका CRR मेंटेन करने के बाद फिर एक्चुअल रिजल्ट। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका फाइनली एक्सेस रिजर्व ज़ीरो नहीं हो जाता। वो ज़ीरो तब होगा जब आपकी एक्चुअल कैश डिपॉजिट होती और आपका जो CRR मेंटेन हो रहा था वो फाइनली जाके ज़ीरो हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो हम अपना 10,000 रुपीज़ का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जो हमारी कैश डिपॉजिट्स 10,000 रुपीज़ की हमने मेंटेन किए थे, इस एग्जाम्पल में आपका बेसिकली माइंडसेट ये रहेगा कि हमारा जो टोटल आपकी जो कैश एक्चुअल डिपॉजिट थी वो 10,000 थी
अब हमारी एक्चुअली अगर आप स्पेंडिंग्स की बात करो, टोटल डिमांड बहुत जो हम स्पेंड कर सकते हैं वो अगर 1 लाख जाती है, तो 1 लाख अगर आप अपना लोन अमाउंट स्पेंड करें तो उसका जब आप 10% लेंगे वो आपका 10,000 आएगा, मतलब CRR जो हम मेंटेन करेंगे। 1 लाख जब आप अमाउंट लेंडिंग के लिए अवेलेबल कराती हैं कमर्शियल बैंक, तो उस 1 लाख के अमाउंट का जब आप CRR रेशो मेंटेन करेंगे, जो हमारा करंट एग्जाम्पल चल रहा है, तो आपका 10% मीन्स 1 लाख का 10% विल बी योर 10,000 रुपीज़। अब जब आप एक्सेस रिजर्व्स की बात करेंगे तो आपका एक्चुअल कैश डिपॉजिट जो 10,000 का हुआ था माइनस विल बी योर रिक्वायर्ड रिजर्व, जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जो कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज योर 10,000। 1 लाख का 10%, 10,000, so the remaining excess reserve will be 0. This is where this process ends. मनी क्रिएशन इज ऑल जब आप किसी अकाउंट होल्डर का अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, कुछ CRR रेशो अपने पास मेंटेन करके उसे आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब बैंक्स को इन सब चीज़ों की सिचुएशंस को ये माइंडसेट रखना चाहिए कि व्हेन यू आर लेंडिंग समवन मनी, तो उस NPAs ना हो, हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ना मेंटेन हो। ये तब सिचुएशन क्रिएट होती है जब आपने मनी तो लैंड कर दिया बट आपने कुछ गारंटी के पर्पज या कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं रखी थी। उस केस में ऐसा होगा कि आप उस पर्टिकुलर, अगर वो आपका जो कस्टमर है, आपका जो जिसको मनी आपने लेंड किया है, वो आपको वापस रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो बैंक को लॉस सफर होता है। क्यों? क्योंकि हमने उसे मनी लेंड किया, वो किसी और का मनी था जिसने एज अकाउंट होल्डर हमारे अकाउंट में डिपॉजिट्स किए थे। उसका कुछ अमाउंट हमने रिजर्व में रखे, बाकी अमाउंट किसी और को लेंड कर दिया। अब अगर सामने वाला जिसने हमसे मनी उठा, मतलब ऐसे बोरो किया है, वो हमें रिपे नहीं करता है, और जिस अकाउंट होल्डर्स का मनी हमारे बैंक में डिपॉजिटेड है वो विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालते हैं, उस सिचुएशंस में बैंक के पास सर्टेन अमाउंट होना चाहिए। अगर वो मेंटेन नहीं होगा, उस वजह से बैंक फेसेस प्रॉब्लम। करेंटली अगर हमें येस बैंक का एग्जांपल है, तो येस बैंक का एज अ जो हमने क्लास में डिस्कस किया, येस बैंक की सिचुएशंस क्यों प्रॉब्लमेटिक हुई, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट क्रेडिट के फॉर्म में मार्केट में सप्लाई कर दिया था, और एक्चुअली वो अपने होल्डर्स जो बोरोवर्स थे, जो उन लोगों से कलेक्ट नहीं कर पाए, जिस वजह से उनके NPAs इंक्रीज हो गए। आप गारंटी ना देके फ्री में क्रेडिट कार्ड सेल करेंगे या कुछ सर्टेन अमाउंट मनी एक्स्ट्रा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा आपका, उस वजह से लोग अट्रैक्ट होंगे, बट उसमें आप अमाउंट लेंड कर रहे हो मनी, वो चीज़ें सिचुएशंस एट द एंड बैंक्स को फेस करनी पड़ती है। एंड एट द एंड सिचुएशंस क्या क्रिएट हुई कि जो हमारे अकाउंट होल्डर्स हैं उनको एक सर्टेन लिमिट फिक्स कर दी गई थी कि आप इतना ही अमाउंट डाल सकते हैं। The situation was that कि बैंक में भी केस कि बैंक अपने डिपॉजिटर्स के मनी ही रिफंड ना कर पाए, बट सर्टेन पॉइंट क्रिएट हुआ जब अदर बैंक स्कीम जिनने उनके शेयर्स परचेज किए, और अभी सिचुएशन है कि येस the account holders, those who are having their bank balance in that yes bank, they can withdraw them. होप आप सबको क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक समझ में आया। नाउ when we talk about credit creation by commercial banks, so all the commercial banks do not have that much of powers or unlimited powers for creating money or credit creation. They have some limitations also. So after studying what actually money creation or credit creation is all about, there are some limitations for this money creation or credit creation. The first limitation is an amount of cash. First, as and I explained you all about credit creation, it all started with the primary cash deposits. Now, if there will be no cash deposits by the customers or not sufficient cash deposits by the account holders or by the customers of the bank, so how will the credit creation will create? So firstly, the amount of cash should be maintained by the bank. That is, जो आपके अकाउंट होल्डर्स हैं, जो बैंक्स के अकाउंट होल्डर्स हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं, जो कुछ सर्टेन अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं,
वो जो सर्टेन अमाउंट है वो अमाउंट ऑफ कैश बैंक को मेंटेन करना होगा। अगर वो अमाउंट ऑफ कैश ही मेंटेन नहीं होगा तो हम उसका कितना सर्टेन अमाउंट कैश रिजर्व इशू के फॉर्म में सेपरेट रिक्वायर्ड रिजर्व मेंटेन करेंगे और फिर रिमेनिंग अमाउंट हम लेंड कर पाएंगे। बट अगर हमारे पास उतना अमाउंट ऑफ कैश ही नहीं होगा, उतना अमाउंट ऑफ कैश ही हम मेंटेन करके नहीं होंगे, तो फिर वो सर्टेन अमाउंट आप फर्दर अदर रिजर्व या एक्सेस रिजर्व के फॉर्म में उस सर्टेन अमाउंट को लेंड नहीं कर सकते। सो first limitation for credit creation is that amount of cash. Commercial banks have to maintain that amount of cash. They should be having that amount of cash so that they can lend the money, so that they can create money and they can supply money, they can lend money to their customers or to borrowers who actually are in need of certain amount of money. Second limitation is external drain. The term external drain means withdrawal of money. Externally, when the public withdraw a certain amount of money. First limitation was certain amount of money, certain amount of cash to be maintained by the banks. That is, the customers should actually deposit certain amount of money in the bank. Second is a limitation of external drain. That is, there are some customers, there is some general public who withdraw certain amount of money. Obviously, it is their money. वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो उस अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं, हो सकता है कुछ XYZ एमरजेंसीज हो जिसकी वजह से उन्हें वो मनी विड्रॉ करना पड़ेगा। एज हमने जब क्रेडिट क्रिएशन समझा था, व्हेन आई मेड यू अंडरस्टैंड, उसमें हमने एक अज्यूम किया था कि एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर सारे कस्टमर्स जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो अपना मनी विड्रॉ नहीं करते। बट व्हाट इफ़ अगर उन सब ने विड्रॉ कर लिया, या फिर एक कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल ने विड्रॉ किया बट वो जो अमाउंट विड्रॉ करी वो लमसम अमाउंट थी, वो हमारे क्रेडिट क्रिएशन में प्रॉब्लम करेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने माइंडसेट में मेंटेन कर रहे हैं कि ऑब्वियसली बैंक में आपने कुछ सर्टेन अमाउंट मेंटेन किया है, तो वो आपके कस्टमर्स इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए या एज अ डिपॉजिट्स अपने बैंक में स्टोर रखते हैं। वो मनी हम क्रेडिट क्रिएशन के फॉर्म में अदर कस्टमर्स को लेंड करते हैं। अब हमारे कस्टमर्स को भी कुछ सर्टेन अमाउंट की इमरजेंसी से कुछ आया तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट होगी, वो विड्रॉ करेंगे। बट जब वो सर्टेन अमाउंट कुछ सर्टेन अमाउंट से एक्सेस हो जाता है, कुछ हमारा लमसम अमाउंट में मनी विड्रॉ होता है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है बैंक के लिए। दैट्स व्हाई इट्स अ लिमिटेशन कि अगर आपकी जो पब्लिक है, आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपके डिपॉजिटरीज हैं, वो डिपॉजिटरी अमाउंट ज़्यादा विड्रॉ कर लेते हैं तो वो हमारे क्रेडिट क्रिएशन में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। Next, the third limitation of credit creation is willingness of customers to borrow. Now, we have amount of cash, certain amount of cash. There are some external drain also. Some of our customers who are withdrawing certain amount of money. But what if there are no borrowers of that money? We cannot lend to some money. अगर हमारे borrowers ही नहीं होंगे, हमारे borrowers ही नहीं होंगे, तो फिर हमारा क्रेडिट क्रिएशन क्रिएट ही कैसे होगा? अब क्रेडिट क्रिएशन तभी क्रिएट हो सकता है जब कुछ borrowers हैं जो कुछ अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट लेते हैं, कुछ लोन चाहिए, हम कुछ अमाउंट सर्टेन अमाउंट लेंड कर सकते, तभी हमारा मनी सर्कुलेट होगा, क्रेडिट क्रिएशन होगा। बट इफ borrowers are not in a need of money, then what? It can be a case if we talk about industry purpose or some firms or some partnership firms or sole proprietors, they mainly think of retained earnings. Retained earning is that when you are earning some amount of profit, वो अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए उसको ही अपनी कंपनी में वापस रिटेन करनी, मतलब वो जो सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट था वो आपने अपने शेयर होल्डर्स को या अपने को डिविडेंड्स के फॉर्म में नहीं देते हुए अपनी कंपनी के बेटर फ्यूचर, फॉर बेटर एक्सपेंशन, फॉर ग्रोथ, फॉर फाइनेंस पर्पसेस उसको वापस अपनी कंपनी में ही रखते हैं, वो आपका रिटेन अर्निंग होता है। Right now, when we talk about the present situation, there are many companies who go through these retained earning processes. Basically, the first thing in their mind is that if they go for loan purposes or they borrow some loan for the banks, they have to repay that loan with some amount of
interest also. And when we go for retained earnings, they don't need to pay that interest amount. And even when you talk about loan also, you have to maintain some collateral security or some guarantee purpose for that also. When we go for retained earning, there is no need for that. It's our money only, which we are not taking back in a dividend form. It's just that we are storing for our better future, for our company's better future, for that expansion also. तो अगर आपके borrowers की willingness ही नहीं आती, तो आपका credit create क्यों कैसे होगा? ये आपका industry purpose, partnership purpose, firm purpose. When we talk about the service class peoples, their mindset will be like that what amount of salary they are getting, they will cover up all their expenses in that case only, unless and until there is a requirement of housing loan or car loan or XYZ reasons. The thing is that if borrowers are not there, so our credit creation process will be affected. Our credit creation process affected, it will be a limitation for our credit creation. The money credit creations will be affected. Next, limitation of credit creation is supply of collateral security. Now, when we want credit creation, that is, we want some borrowers who can borrow certain amount of money. Now, obviously, हम किसी को certain amount of money बिना किसी collateral security के या guarantee के purpose पे तो दे नहीं सकते. So we have certain amount of guarantee purpose or collateral security in the form of some assets or certain amount of money or bills or shares or stocks, or you can say a guarantee purpose of a certain person. If that particular person, our borrowers were not able to repay, we concerned with the third party or the guarantee purpose. The name is being mentioned in that documentation purpose. Now, those collateral securities, they should be converted into the money, that is some liquid assets. We can say that कि अगर आपका certain amount of money जो आपने borrowers को lend किया वो आपका repay नहीं हो पाता है, तो वो collateral security को आप money में convert कर सकें, ये possibilities हो तभी आप किसी certain person को money lend कर सकते हैं. अगर आपका अमाउंट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी अगर आपका कन्वर्ट नहीं हो पाता है मनी में, तो वो आपकी ट्रबल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है. ट्रबल सिचुएशन इसलिए क्योंकि आपका जो सर्टेन अमाउंट था क्रेडिट क्रेडिट का वो भी गया, वो आपका रीपे नहीं हो पाया. अगर वो रीपे नहीं हो पाएगा तो वो किसी और का डिपॉजिटरी अमाउंट है जो बैंक के फॉर्म में. एट द एंड ऑफ द डे बैंक को अपने डिपॉजिटर्स को उनका सर्टेन अमाउंट तो विड्रॉ करना ही पड़ेगा, तो एट द एंड बैंक अफेक्ट होती है. अब जो जिसको हमने लेंड किया है कुछ अमाउंट, अगर वो हमें रिपे नहीं कर पा रहे तो वो कहीं ना कहीं आप ही के बैंक को इफेक्ट करता है. सो इसलिए आपका कोलेटरल सिक्योरिटी या गारंटी पर्पस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मीन्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. फेक आईडीज, फेक आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट्स, ये चीज़ें आप नहीं अप्लाई करें तो बेटर कमर्शियल बैंक के लिए बेसिकली. So collateral security should be like that can be converted into money, so that in future we don't have any problem. The bank should not be under trouble situation. Next limitation of credit creation is our banking habits and banking system. Now every customer have a mindset that there should be a developed banking system, banking habits. Like firstly, when there was no mobile banking, no internet banking, no ATMs available, a customer has to go to the bank, be in a line for withdrawal or deposits of money. Now in a current scenario, you can withdraw or deposit your cash online through that ATM banking, through mobile banking. You can withdraw money, you can go for internet banking, for net banking transfers. So a developed banking system is there that will be good for the customers and they'll be attracted through that. So they'll come for borrowing or for lending of money. Now there can be a situation when a customer wants to transact by cash, but it's not acceptable, or checks are not acceptable, or they think that no, the loan amount will not be in a cash. So certain things should be in the mind of a customer. So basically they want a developed banking system. What facilities they are thinking about, they should be available with that. When we talk about the current scenario, everyone knows coronavirus is there. That coronavirus is affecting Indian economy,
every industry. When we talk about medical industries, pharmaceutical industries, even the steel and steels, all the industries have been, banking sector has been affected. Still, in our current situations, banks are in a working mode. That is, even the notice has been there that alternate days the employee should go and should provide these services. But at last, if you want certain amount of money in any emergency, like you have any medical emergency and you want certain amount of money, you can go to the ATMs and withdraw the money. You will be happy that in this current scenario where there is all lockdown in India, still there are some people who are working for us safety, for our you can say हमारे लिए वो अपनी लाइफ रिस्क करके अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं. सो इन दैट केस यू कैन टॉक अबाउट ऑल डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम दैट हाँ आज बैंकिंग आज कुछ कम कर दिए बट येस व्हाट वी नीड they are providing us the services. So every customer have a mindset that when they are going for borrowing of certain amount, पहले तो interest amount कितना pay करना है, कितना certain time मिलेगा, what collateral security they are wanting, and finally there should be a good developed banking system. Last limitation of credit creation is our monetary policy of the central bank. When we talk about monetary policy, it includes all the bank rate, reverse repo rate, your statutory rate, your SLR, that is statutory liquidity rate. When we talk about cash reserve ratio, all the ratios which are being included in your monetary policy. Now, secondly, the central bank, the RBI, it has a full control. It can control credit also, and they can ask for the money supply also, and they can control the money supply also. So finally, it all depends upon the monetary policy, what changes the bank, the Indian economy wants, and accordingly हमारे सारे credit creations पे उनका पूरा power रहता है. Obviously, commercial banks have certain amount of control, but finally the control is over the central bank, which is finally going to take care of all these things. So I hope आपको credit creation by commercial banks topic समझ में आया. Basically, I explained you with an example so that you can understand it more nicely. Lastly, your limits of credit creations. I hope you all have understood. If any doubts, you can ask me.